Welcome to the topic cost sheet from cost accounting book. So let's start with the topic cost sheet. Format of cost sheet measures. Here you have to write the name of the organization. Cost sheet for the period ended on. It might be prepared for weekly, monthly, quarterly, half yearly or yearly. You write here units produced. कितना units produce हुआ है and how many units are sold. The units sold. Format of the cost sheet is direct material consumed, direct wages, direct expenses. All these are the direct expenses. So direct material consumed, direct wages, direct expense और direct cost मिलाकर हो गया prime cost. What is prime cost? Add factory overheads. Add factory overheads less sale of factory scrap or waste. तो factory overheads में से factory scrap minus करना है. Then add opening stock of work in progress less closing stock of work in progress. Now what is work in progress? So in case of sugar industries, sugar cane is a raw material and sugar is a final product. So when the sugar cane is introduced into the factory or machine, juice is extracted. Now from the juice that till it gets finished, that is till it gets converted into sugar, the stock which is lying there is called as what? Work in progress. So sugar cane is a raw material, sugar is final product, that is finished goods, and whatever the stock is there during the process is called as what? Work in progress. So add opening stock of work in progress less closing stock of work in progress. ये ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट में. सो दिस इज प्राइम कॉस्ट. उसमें हमको ये फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करना है. तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे. सो व्हाट वी गेट्स इज वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट. देन क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, research and development cost. Now as per the format we have written this, but in many questions you will not find any balances in quality control and research and development. Then add office and administration overheads, will get the cost of production. उसमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. सो द कॉस्ट व्हिच इज अराइव्ड इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. उसमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. इट विल बी द cost of sales. Add profit into that, finally we'll get the sales. So let's revise once again the format of cost sheet. Direct material consumed, direct wages, direct expenses will give the answer as prime cost. उसमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स तो मिलेगा हमको वर्क कॉस्ट. उसमें ऐड करना है ऑफिस ओवरहेड्स, मिलेगा हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर दो, मिलेगा हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. उसमें ऐड कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, व्हाट यू विल गेट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स. ऐड प्रॉफिट टू दैट, यू विल गेट फाइनली सेल्स. एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस will give prime cost. Add factory overheads will give work cost or factory cost. Add to that office and administration overheads, will get cost of production. Add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods, will get the answer for cost of goods sold. Add selling and distribution overheads, will get cost of sales. Add a profit to that, will get finally sales. So cost sheet is basically a statement showing the cost at different stage of production. Cost sheet is a statement showing the cost at the different stage of production. Now I will go in detail. Again, format of cost sheet message. Organization का नाम लिखना है cost sheet for the period ended, units produced, units sold. The first is direct material consumed. Now what is direct material consumed? The direct material is the cost of material which can be directly allocated to a cost center or a cost object in an economically feasible way. Say for example, जैसे कि हम लोग example discuss कर रहे थे sugar industry. So what is the basic raw material is sugar cane.
So that cost of sugarcane, that is direct material consumed. Now how to calculate the direct material consumed? Opening stock of raw material, add a purchase of raw materials, add carriage inward, add octroi duty, input duty, the expenses incurred for bringing the raw material to the factory, less closing stock of raw material. So direct material consumed कैसे कैलकुलेट करेंगे? Opening stock of raw material, add purchase of raw material, add carriage inward, add octroi duty, input duty, less closing stock of raw material. Next is direct wages. Wages paid for the workers who are engaged in the production of the goods, and the cost which can be directly identified and linked with the cost center or cost object. So direct wages, different names you will find in the questions. Direct wages, the other name is direct labor, factory wages, manufacturing wages, which are the different names you will get in the question. Direct wages, alternatively called as direct labor, factory wages, or manufacturing wages. Next is direct expenses. Examples will be direct power, royalty based on production, cost of special design. Now what is direct expense? So direct expense are the expense other than direct material and direct wages, which can be identified or linked with the cost center or cost object. So the expenses which are directly related with the production, which we can easily identify with that production. So that is direct expenses. Example will be direct power, royalty based on production, cost of special design. So direct material consumed, direct wages, direct expenses will give the answer for prime cost. उसमें ऐड क्या करना है हमको? फैक्ट्री ओवरहेड्स और कॉल्ड एज व्हाट? वर्क्स ओवरहेड्स और कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन ओवरहेड्स और कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. So which are the different names? Factory overheads or works overheads or production overheads or manufacturing overheads. Now what are the overheads? Overheads means the aggregate of indirect cost. Aggregate of indirect cost. That is total of indirect cost. Total of indirect cost. Indirect cost means the cost of material, labor or expense which cannot be directly identified with or attributed to a cost center or cost unit. So ऐसा खर्चा जो हम लोग डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर सकते, डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते प्रोडक्शन के साथ. Therefore they have to be apportioned, they have to be allocated on some suitable basis. तो पहला वाला खर्चा देख रहे हैं हम लोग जो खर्चा फैक्ट्री में हो रहा है, the indirect expenses incurred in the factory. तो क्या क्या होगा यहाँ पर? Indirect material like cost of consumables, spares, indirect wages, that is wages of salaries of security staff वगैरह, loading and unloading charges, factory rent, depreciation on plant and machinery, works manager salary, that is factory manager salary, loose tools written off, tools हम लोग यूज करेंगे फैक्ट्री में, loose tools written off, that is depreciation on loose tools, material handling cost, material कहाँ पर हैंडल करेंगे? फैक्ट्री में. Power and fuel, oil, gas and water charges, drawing and designing department cost. So all the expenses, all these expenses are incurred in the factory. फिर से बात क्या क्या है? Indirect material, that is cost of consumable or spares. Indirect wages, the wages paid to the workers who are not directly related with the production. Factory rent, depreciation of plant and machinery, works manager salary, that is factory manager salary, loose tools written off, material handling cost, power and fuel, oil, gas and water charges, drawing and designing department cost. इन सबका टोटल करना है and from that we have to deduct sale of factory scrap. तो फैक्ट्री में से जो स्क्रैप जनरेट हो रहा है जिसको हमने बेचा है उसका प्राइस हम यहाँ से क्या करेंगे? माइनस करेंगे. उसमें क्या ऐड करना है? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. द नेट अमाउंट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो हम लोग किसमें ऐड करने वाले हैं? प्राइम कॉस्ट में. तो ये प्राइम कॉस्ट में ये नेट फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे. सो व्हाट वी गेट इज फैक्ट्री कॉस्ट और आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? वर्क्स कॉस्ट. सो फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट. यहाँ तक क्या क्या हुआ? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस,
डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को मिलाकर बन गया प्राइम कॉस्ट, उसमें ऐड कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये बन गया फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। उसमें ऐड क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कॉस्ट, quality control cost and research and development cost. Then you have to add office and administration overheads. The overheads, that is indirect expenses incurred in the office which are related to the production. So general manager salary, audit fees, directors setting fees, insurance of office building, printing and stationery, salary to the office staff, conveyance, postage and telegram, depreciation on office furniture, computers, office building. So depreciation on office furniture, depreciation on computers, depreciation on office building, establishment expenses. So looking to the expenses, you can understand that these are the expenses which are incurred in the office for administrative works. तो ये expenses का total हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, इसमें ऐड करना ये फैक्ट्री कॉस्ट ऐड है, उसमें हमने ऐड किया क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ऐड कर दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, उसमें ऐड कर दिया ऑफिस ओवरहेड्स। तो क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो जो आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है, जितना हमने गुड्स प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, the goods which we have sold उसका cost. Cost of production मतलब whatever the units we have produced, cost of that. And cost of goods मतलब the units that we have sold उसका cost. उसमें ऐड करना है selling and distribution overheads. Overheads that is indirect cost related with selling and distribution. So sales means traveling expenses, commission on sales, advertising, free samples, sales manager salary, depreciation on delivery van expenses, cost of catalog, brand ambassador fees. हमारे प्रोडक्ट बेचने के लिए हमने कोई अगर ब्रांड एम्बेसडर हायर किया है तो उसका जो फीस है, उसके चार्जेस है वो, तो ये सारे खर्चे जो है वो सेल्स से रिलेटेड है। ये सारे खर्चे किससे रिलेटेड है, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड विद द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे, so what you get is cost of sales. उसमें ऐड क्या करना है, प्रॉफिट, एंड फाइनली you will get sales. एक बार फिर से डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो बन गया प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स, बन गया फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड कर दो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गया। ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें ऐड कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, बन गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड कर दो प्रॉफिट एंड फाइनली यू गेट सेल्स। ये फॉर्मेट आपको लर्न करना है, बाहर करना है, क्योंकि अगर ये फॉर्मेट याद रहा तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो आपको ये फॉर्मेट बार बार रिवाइज करना है और उसको याद करना है। Now we'll see certain important points related with the format of cost sheet. पहला वाला पॉइंट है calculation of units sold or units produced. That means what this formula can be used either to calculate units sold or for calculation of units produced. देखते हैं formula क्या है, units sold is equal to opening stock of finished goods plus units produced minus closing stock of finished goods. मान के चलते हमारे पास finished goods का 1000 क्वांटिटी है, महीने भर में हमने 9000 और यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिया, सो टोटल स्टॉक हो गया 10000, उसमें से 2000 क्लोजिंग, बाकी बचा है अनसोल्ड 1000 यूनिट्स पहले से थे, 9000 का प्रोडक्शन किया मतलब 10000 हो गया, जिसमें से 2000 अभी बाकी है, मतलब हमने कितना यूनिट्स बेचा 8000. So if opening stock is given, units produced is given, closing stock is given, you can find out units sold. Alternatively अगर किसी क्वेश्चन में units sold दिया है, opening stock दिया है, closing stock दिया है, you can find out the units produced. तो units produced find out करने के लिए क्या होगा, ये -2000 यहाँ पर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, so 8000 plus 2000 10000, और ये 1000 वहाँ पर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 10000 minus 1000 is equal to units produced 9000. So this formula can be used
for calculation of units sold also as well as units produced also, but not for both simultaneously. So units sold is equal to opening stock of finished goods plus units produced less closing stock of finished goods. Second very important point, to calculate cost per unit. If you have seen this format, तो मैं format में देखो यहाँ पे लिखा है total amount and per unit, total amount and per unit, total amount and per unit, total amount and per unit. तो यहाँ पर क्या लिखा है, to calculate cost per unit divide by units produced. कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमको डिवाइड करना होगा किससे, यूनिट्स प्रोड्यूस से. कहां से लेके कहां तक, फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मतलब शुरुआत से बिगिनिंग टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर हमको कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक किससे डिवाइड करना होगा, यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करना होगा. एंड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स किससे डिवाइड करना है, यूनिट सोल्ड से. किससे डिवाइड करना है, यूनिट सोल्ड से. तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मेट को देखोगे तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मतलब यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, यहाँ तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक क्या करना है, ये पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस, ये नंबर से डिवाइड करना है. एंड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स, ये पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड बाय यूनिट्स सोल्ड, ये नंबर से डिवाइड करना है. हमको किसके लिए पर यूनिट नहीं लिखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का आप यहाँ पर यूनिट वैल्यू नहीं लिखोगे. Do not write cost per unit for opening and closing stock of finished goods. Do not write cost per unit for opening and closing stock of finished goods. तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट. Divide by units produced from direct material consumed to cost of production. So cost per unit कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक किससे डिवाइड करना है, यूनिट्स प्रोड्यूस से. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके सेल्स तक पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए किससे डिवाइड करना है, यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड करना है. किसका कॉस्ट पर यूनिट हमको नहीं लिखना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. नेक्स्ट इज ऑन कॉस्ट मींस ओवरहेड्स. ऑन कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स. नाउ व्हाट इज ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड एज ओवरहेड्स. इनडायरेक्ट कॉस्ट, द कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड or associated with the, which cannot be directly identified with or attributed to a cost center or a cost unit. The cost which has to be allocated, divided, apportioned on some suitable basis is called as what, overheads. तो ये ऑन कॉस्ट का मतलब होगा ओवरहेड्स. तो अगर लिखा होगा फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का मतलब होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स. ऑफिस ऑन कॉस्ट का मतलब होगा ऑफिस ओवरहेड्स. सेलिंग ऑन कॉस्ट का मतलब होगा सेलिंग ओवरहेड्स. फैक्ट्री ऑन कॉस्ट दिया है इसका मतलब होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स. ऑफिस ऑन कॉस्ट का मतलब होगा ऑफिस ओवरहेड्स. सेलिंग ऑन कॉस्ट का मतलब होगा सेलिंग ओवरहेड्स. डायरेक्ट कॉस्ट मींस द कॉस्ट व्हिच कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट द कॉस्ट which cannot be directly related to a specific product or to a cost center, which has to be divided, allocated, apportioned on some suitable basis. बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीटमेंट फॉर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. अगर आपने कॉस्ट शीट में ध्यान से देखा होगा, we have recorded only 3 types of overheads. One is factory overheads, otherwise office overheads, and the last one is selling and distribution overheads. फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा एंड गुड्स बेचने का खर्चा. उसमें क्या नहीं है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नहीं है. सो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लाइक डिबेंचर इंटरेस्ट, interest on bank loan, etc. will not be recorded in cost sheet. Financial expenses like debenture interest, interest on bank loan, etc. will not be recorded in the cost sheet. Treatment for bad debts and cash discount. Now, according to some authors, these bad debts and cash discount are treated as selling expenses. कुछ authors जो है इस bad debts और cash discount को selling expenses मानते हैं, and therefore they included in the selling and distribution overheads. While
अदर ऑथर्स कंसिडर देम एज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तो कुछ ऑथर इनको फाइनेंशियल लॉस मानते हैं, therefore they are not recorded क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपेंस हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते कॉस्ट शीट में. Hence we must give an explanatory note for the treatment given by us. तो अगर हम लोग इनको सेलिंग एक्सपेंसेस मानने वाले हैं या फिर फाइनेंशियल एक्सपेंस मानने वाले हैं, whatever the treatment given by us, we should give an note for that. तो हमको वहाँ पर वो assumption लिखना होगा. For all our solutions, we will treat them as financial expenses. हमारे सारे solution में हम लोग bad debts और cash discount को financial expenses मानने वाले हैं. Hence, they will not appear in our cost sheet. Treatment for non-operating income and gains. Now, what is operating and non-operating? Operating मतलब something which is related to the business. Non-operating मतलब something which is not related with the business. Say for example, अगर हम लोग एक ट्रेडिंग बिजनेस की बात करते हैं, समझो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमने खरीदा और बेचा, उससे जो इनकम हुआ दैट इज ऑपरेटिंग इनकम. और हमारे बिजनेस में कुछ पैसा सरप्लस पड़ा हुआ है जिसको हमने बैंक में एफडी करवाया है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है या फिर डिविडेंड आ रहा है, दैट इज द इनकम व्हिच इज नॉट रिलेटेड विद अवर इलेक्ट्रॉनिक शॉप trading business, and therefore that income is called as what? Non-operating income. तो वैसे कुछ खर्चा होगा जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा, that is called as what? Non-operating expenses and losses. So operating मतलब which is related with the business, non-operating मतलब something which is not related with the business. So non-operating income and gains like dividend received, rent received, profit on sale of asset, investment, etc. will not be recorded in the cost sheet. So non-operating income and gains like dividend received, rent received, profit on sale of fixed asset, investment, etc. will not be recorded in the cost sheet. तो अगर आपको यहाँ पर समझ में आएगा, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखते हो तो आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है सेल्स, दैट इज ऑपरेटिंग इनकम, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऑल दीज आर नॉर्मली नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. The only income other than sale that we record in the cost sheet is a सेल ऑफ स्क्रैप. या तो वो फैक्ट्री का स्क्रैप होगा या फिर मटेरियल का स्क्रैप होगा. तो सेल्स के अलावा जो इनकम हम लोग कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड करते हैं दैट इज अ सेल ऑफ स्क्रैप. वो स्क्रैप हो सकता है फैक्ट्री स्क्रैप हो सकता है या फिर मटेरियल स्क्रैप हो सकता है. फैक्ट्री स्क्रैप होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में से लेस करेंगे, मटेरियल स्क्रैप होगा तो मटेरियल के कॉस्ट में से लेस करेंगे. ट्रीटमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. Non-operating expenses and losses, the expenses and losses which are not related with the business, like preliminary expenses written off, goodwill written off, loss by fire, loss by theft, loss on sale of fixed asset, or loss on sale of investment, etc. will not be recorded in the cost sheet. So non-operating expenses and losses like preliminary expenses written off, goodwill written off, loss by fire, loss by theft, loss on sale of fixed asset, loss on sale of investment, etc. will not be recorded in the cost sheet. Next point is treatment for fixed asset. Purchase of fixed assets are never recorded in the cost sheet. The purchase of fixed asset is a capital expenditure which is not recorded in the cost sheet. Only the revenue expenses incurred on the repairs and maintenance of fixed assets are recorded in the cost sheet, like depreciation on fixed asset, repairs of fixed asset, insurance of fixed asset. In short, अगर फिक्स एसेट खरीदा है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन फिक्स एसेट मेंटेन करने के लिए जो खर्चा किया है, मतलब उसका रिपेयर्स हुआ, उसका इंश्योरेंस हुआ या फिर उसका डेप्रिसिएशन हुआ, दैट वी कैन रिकॉर्ड इन द कॉस्ट शीट. ट्रीटमेंट फॉर क्लोजिंग स्टॉक. इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर क्वेश्चन में कुछ कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इसको हमको कौन से बेसिस पर वैल्यू करना है? वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मतलब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जितना यूनिट्स बाकी बचा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट से. मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट से. नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अर्लियर पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट पीरियड. जैसे आपको पता है अकाउंट्स में इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है. But while preparing the tender cost sheet or estimated cost sheet, do not consider the closing stock of earlier period
एज ओपनिंग स्टॉक ऑफ टेंडर कॉस्ट शीट। अगर हमको किसी को कोटेशन देना है तो कोटेशन इज टू बी गिवन फ्रेश, तो आप पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक उसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाओगे, बिकॉज कोटेशंस टेंडर्स आर नॉर्मली मेड फ्रेश। सर्टेन बैलेंसेस टू बी इग्नोर्ड फॉर कॉस्ट शीट, जैसे प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स पेड, appropriation of profit like interim dividend paid, proposed final dividend, transfer to reserve etc. अगर हम आपने देखा होगा कॉस्ट शीट को ध्यान से, तो कॉस्ट शीट हमारा आंसर देखो यहाँ पर प्रॉफिट आने के बाद रुकता है, उस प्रॉफिट में से हम लोग टैक्स भरेंगे या फिर उसका डिविडेंड पेड करेंगे, रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ऐसा कुछ एलोकेशन वहां पर नहीं है। सो सर्टेन बैलेंसेस टू बी इग्नोर्ड फॉर कॉस्ट शीट, सो specifically these balances are excluded: provision for income tax, advance tax paid, interim dividend paid, proposed final dividend, transfer to reserve. Now आते next important concept में fixed cost. Fixed cost is the cost which remains fixed irrespective of changes in the level of output. इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, कॉस्ट जो बदलने वाला नहीं है, that is called as what? Fixed cost. आउटपुट चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, कॉस्ट जो बदलने वाला नहीं है, दैट इज फिक्स कॉस्ट। इट इज फिक्स इन टोटल, ये टोटल में फिक्स होगा, बट चेंजेस इन पर यूनिट। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रेंट, तो देखिए ये लाइन क्या है, इट इज फिक्स इन टोटल बट चेंजेस इन पर यूनिट। ये लाइन क्या है, मान के चलते हमारा फैक्ट्री का रेंट जो है महीने का 10,000 है, महीने का रेंट कितना है 10,000 है, और एक महीने भर में हमने आउटपुट जनरेट किया 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, सो 10,000 डिवाइड बाय 100, पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा 100 रुपीज। उसी 10,000 में समझो हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो 10,000 डिवाइड बाय 1000, पर यूनिट कॉस्ट कितना है 10 रुपीज, और महीने भर का भाड़ा 10,000 है, किसी महीने में हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ 1। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ते गया, कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गया, कम हो गया। इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। जैसे आप स्केल बढ़ाते जाओगे, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाते जाओगे, आपका जो कॉस्ट है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। किसका कॉस्ट कम होता है, फिक्स कॉस्ट का। तो क्या होता है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच रिमेन फिक्स irrespective of changes in the level of output. आउटपुट चाहे आपका कम हो चाहे ज्यादा हो, कॉस्ट जो बदलने वाला नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिक्स कॉस्ट। ये हमेशा टोटल में फिक्स होता है, पर यूनिट में चेंज होता है। इसको याद रखो क्वेश्चन सॉल्व करते समय, दिस लाइन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल में फिक्स होता है, पर यूनिट में नहीं। फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल में फिक्स होता है, पर यूनिट में नहीं। नाउ वेरिएबल कॉस्ट is the cost which varies, मतलब changes as per the changes in the output. कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज होगा, मतलब आउटपुट बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट कम होता है तो कॉस्ट कम होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। इट चेंजेस इन टोटल बट रिमेन्स फिक्स इन पर यूनिट। ये लाइन इंपॉर्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल में चेंज होगा, लेकिन पर यूनिट में हमेशा फिक्स होगा, पर यूनिट में हमेशा फिक्स होगा। मान के चलते हैं टोटल मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल का खर्चा 10,000 हुआ है, आउटपुट बना है हमने 1000 यूनिट्स, सो 10,000 डिवाइड बाय 1000 यूनिट्स, पर यूनिट का कॉस्ट मटेरियल का कितना हुआ 10 रुपीज। मटेरियल का कॉस्ट समझो 20,000 हुआ, उसमें हमने 2,000 का आउटपुट बनाया, सो 20,000 डिवाइड बाय 2,000, पर यूनिट कॉस्ट इज 10। 30,000 का मटेरियल कॉस्ट हुआ जिसमें हमने 3,000 यूनिट्स बनाए, तो 30,000 डिवाइड बाय 3,000, पर यूनिट कॉस्ट इज 10। अगर आप इस मटेरियल कॉस्ट को देख रहे हो, पहले 10,000 तो बाद में 20,000, पहले 30,000, जैसे आउटपुट 1000 का 2000 हुआ, कॉस्ट 10,000 का 20,000 हुआ, मतलब टोटल में चेंज हुआ लेकिन पर यूनिट में कांस्टेंट है। सो वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या है, चेंजेस इन टोटल बट रिमेन फिक्स इन पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स होता है, एंड फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल में फिक्स होता है। फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स होता है, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स होता है। फिक्स कॉस्ट ये देखो टोटल में फिक्स है, एंड वेरिएबल कॉस्ट ये पर यूनिट में फिक्स है। इसको याद रखना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। इट इज द पैकिंग मटेरियल व्हिच इज एसेंशियल टू होल्ड द प्रोडक्ट एंड ब्रिंग इट टू द कंडीशन इन व्हिच इट कैन बी यूज्ड बाय और सोल्ड टू अ कस्टमर। तो जो बेसिक पैकिंग होता है, जिसके बिना हम लोग उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते, कस्टमर तक लेके जाना होगा बेचने के लिए,
तो जो बेसिक पैकिंग इज रिक्वायर्ड दैट इज प्राइमरी पैकिंग। फॉर एग्जांपल फॉइल्स फॉर स्ट्रिप्स और टैबलेट्स और कैप्सूल्स, तो कैप्सूल्स रखने के लिए जो फॉइल्स आता है, स्ट्रिप आती है, दैट इज अ बेसिक पैकेज। बटर पेपर और रैपर्स फॉर चॉकलेट्स, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारा ये प्रोडक्शन का खर्चा है, ये किसका खर्चा है, प्रोडक्शन का खर्चा, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में चला जाएगा। सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, it is the packing material that enables to store, transport or inform the customer or to promote or otherwise make the product marketable। तो गुड्स को बेचने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान करने के लिए, कस्टमर को कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए जो पैकिंग मटेरियल यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। तो ये हमारा नॉर्मली प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कार्टन्स यूज फॉर होल्डिंग द स्ट्रिप्स ऑफ टैबलेट्स। तो बहुत सारे स्ट्रिप्स को एक साथ एक कार्टन में भरा हुआ है, दैट कार्टन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पैकिंग, क्योंकि सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल, क्योंकि स्ट्रिप्स जो है वो फॉइल्स फॉर स्ट्रिप्स वगैरह जो कौन सा है, प्राइमरी पैकिंग है। कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज्ड फॉर होल्डिंग द कार्टन्स, सो इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये किसमें जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो यहाँ तक हमने देखा कि व्हाट इज द फॉर्मेट, पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या है, डिटेल फॉर्मेट क्या है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस वीडियो को आपको बार बार सुनना है, बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि यही आपका बेस है जिसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक फाइनल कंक्लूड करते हैं लेक्चर को, एक यहाँ पर रिवाइज करके कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को मिलकर क्या बनेगा, प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड क्या करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या बनेगा, वर्क कॉस्ट। उसमें ऐड करोगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। बहुत सारे क्वेश्चन में ये दोनों कॉस्ट होगा ही। ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो बनेगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें ऐड कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें ऐड कर दो प्रॉफिट, बन जाएगा सेल्स। Thank you very much.